Now guys, one more point was left out. The a function is increasing or decreasing in closed interval AB, if number one, f is increasing in between A and B, and number two, f is increasing at x equals to A and x equals to B, राइट? ये याद रखना है आपको. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंड पॉइंट पे आपको अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो वन साइडेड इनइक्वालिटी को फॉलो करोगे, राइट? फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ. f इज इंक्रीजिंग at x equals to A if f of A is less than f of A plus h. H is a sufficiently small positive value of h, right? H is sufficiently small, tending to 0, right? You can say tending to 0, and f is increasing at x equals to B if f of B is if f of B is greater than f of A minus h. ठीक है? तो अगर किसी क्लोज इंटरवल में आपको मोनोटोनिसिटी चेक करना हो तो A और B के बीच में उसको मोनोटोनिक होना ज़रूरी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और एंड पॉइंट्स पे आपको चेक करना पड़ेगा बाय फॉलोइंग वन साइडेड इनइक्वालिटी, राइट? ठीक है? इसके बाद after this, right now we discussed about the definitions and non-calculus method of testing 1 right? कोई भी फंक्शन 1 है या नहीं है, इसको हम लोग टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, विदाउट कैलकुलस, राइट? और द डेफिनेशन वाज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कर्व, फॉर कंटिन्यूअस, नॉन डिसकंटिन्यूअस, differentiable and non-differentiable, right? Now, if a function y equals to fx is continuous and differentiable in closed interval AB, right? Then it is strictly increasing if f dash x is greater than 0 in closed interval AB, right? So a function is, if a function is, for this it is we are using calculus method of testing 1. Now whenever you are going to test for increasing and strictly increasing or increasing and decreasing etc. by calculus method, the very first and the foremost condition which one should check for is the function must be continuous and differentiable in the given domain, right? Then it is strictly increasing if its derivative is greater than 0 in closed interval A comma B, right? A comma B, and decreasing if its derivative is strictly decreasing if its derivative is less than 0 for all x belonging to the domain, right? So if a function is continuous and differentiable,
then it is strictly increasing if f dash x is greater than 0 in closed interval a b, and strictly decreasing if f dash x is less than 0 for all x belonging to the जो भी डोमेन है a to b whatever. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ f dash x is greater than equals to 0 in closed interval AB and f dash x is 0 at finite number of points in AB, in open interval AB, then also function is said to be strictly increasing in A to B. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये पढ़ा कि डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर 0 भी आ रहा है एंड दैट टू, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो 0 कहाँ पे हो रहा है, एट फाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी. फाइनाइट, और इसको मैं एक और वर्ड ऐड करूंगा, discrete, discrete finite point, number of points between A and B, then also it is strictly increasing. जैसे ध्यान से देखोगे, अगर मैंने एक फंक्शन लिया fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सबको पता है कि ये फंक्शन डायग्राम से, ग्राफ से देखो तो ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग कर्व है, राइट. बाय डेफिनेशन देख लो, x का वैल्यू बढ़ाओगे y का वैल्यू भी बढ़ेगा, राइट. लेकिन डिफ्रेंसिएशन से अगर मैं देखूं, इसका डिफ्रेंसिएशन आ रहा है 3x स्क्वायर, ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है. 0 भी तो हो सकता है, x को 0 लेंगे, लेकिन 0 हो रहा है एट ओनली फाइनाइट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे 0 हो रहा है. फाइनाइट मतलब गिने चुने पॉइंट पे, इंटरवल पे 0 नहीं होना चाहिए. तो x इज इक्वल्स टू 0 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, राइट. स्टिल द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज. तो याद रखना, अगर कहीं भी डेरिवेटिव 0 हो रहा है और वो जहां 0 हो रहा है वो गिने चुने पॉइंट्स हैं, डिस्क्रीट फाइनाइट पॉइंट, गिने चुने पॉइंट्स हैं, तब भी उस फंक्शन को वी कॉल इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली कंडीशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. डिफरेंशिएशन एक लिमिटिंग वैल्यू है, इसलिए इसमें कुछ एरर्स आते हैं. उसको ओवरकम करने के लिए आपको बता दिया गया कि अगर कहीं डेरिवेटिव 0 भी हो रहा है लेकिन गिने चुने पॉइंट्स पे, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे, तो भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, राइट. सिमिलरली समझिए, सिमिलरली अगर कोई फंक्शन लेस देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है एंड एफ डैश एक्स इज 0 एट डिस्क्रीट नंबर ऑफ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, देन द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए भी ट्रू होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इसका कन्वर्स भी याद रखना है आपको. इसका कन्वर्स क्या है कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है इन क्लोज इंटरवल ए बी, या ओपन भी दे सकते हो, ओपन भी ले सकते हो, ओपन जो गिवन होगा. इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन क्लोज इंटरवल ए बी, it implies f is strictly increasing function, and if f dash x is less than 0 in closed interval AB, then it implies f is strictly decreasing. ठीक है, इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और कन्वर्स क्या, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है फंक्शन का तो भी वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, राइट. ठीक है, इसमें फिर वही बात कि अगर ये इक्वल्स टू भी आ गया तो पीछे वाली बात याद आ जाएगी आपको. इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन ऑल्सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रोवाइडेड वो 0 हो रहा है गिने चुने पॉइंट्स पे. अब इस पे ध्यान देना, ये कर्व लिया मैंने, इसमें आपको दिख रहा है कि जो डेरिवेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है
और ज़ीरो भी आ रहा है, डेरिवेटिव ज़ीरो है इन एन इंटरवल, और इस इंटरवल में कितने वैल्यूज़ आएंगे? क्या फाइनाइट वैल्यूज़ आएंगे? नो, इनफाइनाइट वैल्यूज़। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन फ़र्क यह है कि एफ डैश एक्स ज़ीरो हो रहा है in an interval, not at a point, not at a discrete point. So this function is f is not strictly increasing. ये strictly increasing नहीं है, but it is increasing. ये increasing है, right? Monotonically increasing. Definitions को पीछे जाके देखना, if you have forgotten, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये mi है, monotonically increasing यानी कि increasing या non decreasing भी बोल सकते हो, ये है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, एक गिने चुने पॉइंट्स पे नहीं हो रहा है, एक इंटरवल पे, और इंटरवल में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन ज़ीरो हो रहा है एट डिस्क्रीट पॉइंट, फाइनाइट पॉइंट, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए डेरिवेटिव क्यों पॉजिटिव हो रहा है, राइट? तो प्रूफ इसका दिखाता हूं आपको। दो तरह के प्रूफ, ज्योमेट्रिकल, मैथमेटिकल। पहले ज्योमेट्रिकल, कोई भी इंक्रीजिंग कर्व ले लो, ठीक है? मान लो कर्व ले लिया, ये कर्व इंक्रीजिंग है, आपको दिख रहा है। किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे इंक्रीजिंग कर्व पे, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करके देख लो, in all the cases the angle made is obtuse or acute, angle is acute। कोई भी इंक्रीजिंग कर्व ले लो गाइस, जैसा भी इंक्रीजिंग कर्व ले लो, और कहीं भी आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे, देख लो एंगल जो बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो एक्यूट होगा ही। और अगर थीटा एक्यूट है तो उसका टैन पॉजिटिव होगा। यू ऑल नो टैन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो टैन पॉजिटिव है, और टैन होता है स्लोप ऑफ द लाइन, टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज ग्रेटर देन जीरो। डिफ्रेंसिएशन अगर याद होगा तो कैलकुलस में डी वाई डी एक्स एट अ पॉइंट जो होता है वही स्लोप होता है, और डी वाई डी एक्स होता है स्लोप का एक्सप्रेशन। तो डी वाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। डी वाई डी एक्स को ही हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। सो अगर कोई कर्व इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट? दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट? तो ये मैथमेटिकल नहीं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिखाया मैंने ग्राफ से। सिमिलरली डिक्रीजिंग अगर है, डिक्रीजिंग है, यू ऑल कैन सी, डिक्रीजिंग कर्व कहीं भी बना लो, डिक्रीजिंग कर्व पे अगर कोई भी टैंजेंट बनाते हो किसी भी पॉइंट पे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ हमेशा हम लोग एंगल देखते हैं, ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, कहीं भी बना के देखोगे। अगर ऑब्ट्यूज है 90 से 180 के बीच का है, तो टैन थीटा नेगेटिव होगा। अगर टैन थीटा नेगेटिव है मीन्स स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब डी वाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव, राइट? तो ज्योमेट्रिकली मैंने साबित कर दिया कि कोई भी कर्व अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अपने डोमेन में, तो उसका डेरिवेटिव उस डोमेन में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और डिक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। और डिस्क्रीट पॉइंट पे जीरो हो भी सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, लेकिन अगर इंटरवल पे जीरो हो रहा है डी वाई डी एक्स, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होके सिर्फ इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हो, राइट? अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिखा देते हैं, ठीक है? वो भी देख लो, एक देख लो, काफ़ी इंक्रीजिंग का खाली देख लो। ये कर्व इंक्रीजिंग है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, ये x है, ये x माइनस एच, और ये x प्लस एच बोल सकते हो। इसका ऑर्डिनेट होगा f ऑफ x प्लस एच, ये ऑर्डिनेट होगा एफ एक्स, और ये ऑर्डिनेट होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए और बी, और इसको नाम दे दिया पी, ठीक है? ए का कोऑर्डिनेट बोल सकते हो एक्स प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसका कोऑर्डिनेट बोल सकते हो एक्स माइनस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स माइनस एच,
और p का कोऑर्डिनेट है x कॉमा एफ एक्स, राइट? क्लियर? अब मैंने इसको मैंने क्या किया, p पे एक टैंजेंट बना लिया, p पे एक टैंजेंट बनाया, राइट? अब तुम लोग सब जानते हो p पे जो टैंजेंट बना इसका स्लोप f डैश x होगा, राइट? क्लियर? अब ध्यान से देखोगे, कोई भी एक पार्ट ले सकते हो, मैं इस पार्ट को लेके चलता हूँ, राइट? इस पार्ट को, ये कॉर्ड AP है। अब मुझे बताओ AP का स्लोप क्या होगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ AP? तो गाइज वी नो दैट f डैश x, मतलब x पे जो टैंजेंट का स्लोप आ रहा है या डिफरेंशिएबिलिटी, f डैश x को हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स लिख सकते हो बाई h, ठीक है? डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरम डायरेक्ट यूज किया, डायग्राम से भी देख सकते हो। अब अगर ये कर्व इंक्रीजिंग है तो वी ऑल नो दैट f ऑफ x प्लस h एफ एक्स से बड़ा होगा, यस और नो? बिकॉज रीजन, बिकॉज x प्लस h इज ग्रेटर देन x, राइट? h हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। f ऑफ x प्लस h इज ग्रेटर देन एफ एक्स। सेम साइड लाओ, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। सबको h से डिवाइड किया, चूंकि x पॉजिटिव है इट वॉन्ट चेंज द साइन, राइट? लिमिट भी ले लोगे तो उससे पॉजिटिव नेगेटिव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या ये डी वाई डी एक्स नहीं है? बिल्कुल, डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। राइट साइड से दिखाया, लेफ्ट साइड से भी सिमिलरली तुम शो कर सकते हो, राइट? तो इंक्रीजिंग है तो तुम लोग को पता है कि x प्लस एच अगर x से बड़ा है तो उसका फंक्शन भी उसके फंक्शन से बड़ा होगा। देखो उसी से मैंने इसको निकाल लिया और यही f डैश x है, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया मैथमेटिकली, राइट? नाउ गाइस, ध्यान देना एक बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हमने क्या बोला कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देन इसका डेरिवेटिव यानी कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। यही ना बताया आपको, ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दे, y की जगह में कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, राइट? सपोज करो मैं बोलता हूं z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ t इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट? तो देन इट इंप्लाइज dz dt यानी कि f डैश t विल बी ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि dy dx is equals to dy dx as a function is strictly increasing। देखो जो इंक्रीजिंग है उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, यस और नो? z इंक्रीजिंग है तो dz dt ग्रेटर देन 0 आता है, ये तो उसका सिंबल है। तो अगर मैंने बोला किसी को भी डिफरेंशिएट करते हो तो वो भी एक फंक्शन ही ना आता है। जैसे सपोज करो एक्स क्यूब है ये, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन दे रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है ना एक्स में, तो ये भी तो एक फंक्शन है, राइट? सो डी वाई डी एक्स भी तो एक फंक्शन है एज अ फंक्शन। तो डी वाई डी एक्स अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, राइट, तो इट इंप्लाइज कि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि d2y dx2 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? तो ये लेगेसी जो है, लेगेसी ये चलता रहता है, मतलब जो इंक्रीजिंग है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ गए? अगर मैंने आपको बोला कि d3y dx3 इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या इंप्लाई करता है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, d4y dx4, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, याद रखना इसको।
अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कनकेव कन्वेक्स के बारे में नॉलेज दे दूं। इंक्रीजिंग कर्व बहुत प्रकार के होते हैं। ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, आप देखोगे ये भी इंक्रीजिंग है, राइट, दोनों इंक्रीजिंग है, दोनों में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव होगा टैंजेंट का। अब देखो दोनों की शेप में लेकिन फर्क है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव अप, कनकेव अपवर्ड्स, और इसको कनकेव डाउनवर्ड बोल सकते हो, या कन्वेक्स, ठीक है, या कॉन्वेक्स। दोनों के कर्व में डिफरेंस है, लेकिन दोनों में dy dx क्या है गाइस, ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों ही इंक्रीजिंग कर्व है। यस और नो, y इज इक्वल टू fx, दोनों इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है दोनों में। अब सुनो ध्यान से, आप इस कर्व को नोट करो, कनकेव अप वाले कर्व को आप नोट करो, और इसमें पाओगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, ध्यान से देखना गाइस, जैसे जैसे आगे जा रहे हो, टैंजेंट का जो एंगल बना रहा है वो बढ़ते जा रहा है। यस और नो, यस और नो। इस केस में जस्ट उल्टा हो रहा है, इस पॉइंट पे टैंजेंट का एंगल देख लो अल्फा, आगे बढ़ रहे हो तो एंगल घट रहा है ना। तो दोनों कनकेव अप और कनकेव डाउन में डिफरेंस क्या है, एज विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल विच द टैंजेंट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। इन दिस केस द एंगल इंक्रीजेस, एक्यूट है, एक्यूट में बढ़ रहा है। इस केस में भी एक्यूट है एंगल, क्योंकि डी वाई डी एक्स पॉजिटिव है, लेकिन एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सोचो, अगर एंगल बढ़ रहा है, इफ एंगल इंक्रीजेस with the increase in x, tan theta increases, tan theta increases, यानी कि dy dx increases, angle increases implies tan theta increases, implies dy dx increases, और dy dx अगर increase कर रहा है, therefore इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो याद रखना, कोई भी कर्व अगर कनकेव है तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, यही वजह है सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो dy dx का ना डेरिवेटिव है, यानी कि dy dx अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तभी ना उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो कोई भी कनकेव अपवर्ड कर्व अगर है तो उसका टेस्टिंग मेथड या उसको पहचानने का कैलकुलस में टूल क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, राइट। जरूरी नहीं इंक्रीजिंग में ही कनकेव हो, किसी में भी कनकेव हो, ये कनकेविटी का कंडीशन है, कनकेव अप का कंडीशन है। इसमें देखो, एज थीटा डिक्रीजेस विथ एक्स, विथ इंक्रीज इन एक्स, है ना, विथ इंक्रीज इन x, theta decreases with increase in x, tan theta decreases with increase in x, tan theta मतलब dy dx decreases with increase in x, therefore dy dx is decreasing function, is decreasing function। तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा गाइस, लेस देन 0, स्ट्रिक्टली, सॉरी स्ट्रिक्टली लिखना भूल गया, d2y dx2 लेस देन 0। तो ये कंडीशन है, कन्वेक्स का कंडीशन क्या है, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, और कनकेव अपवर्ड का कंडीशन क्या है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, याद रखना ये। इसके बाद गाइस, हाउ डू वी यूज कैलकुलस, हम लोग कैलकुलस को कैसे यूज़ करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले, इफ अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, एट x इक्वल्स टू a,
and f is continuous and differentiable. तो अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था विदाउट कैलकुलस, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग कैलकुलस, एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, देन कैसे पता लगाओगे? देन एफ डैश ए पे जो डेरिवेटिव आएगा ग्रेटर देन जीरो आएगा और लेस देन जीरो आएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है या नहीं पता लगाना है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करो, उसमें x की जगह a डाल दो। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उस पॉइंट पे, और नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन बट इफ एफ डैश ए जीरो आ गया, स्टिल फंक्शन में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है, पता लगाना पड़ेगा। तो कैसे पता लगाओगे? ए को प्लॉट कर दोगे नंबर लाइन में, ये हम लोग साइन स्कीम लिख रहे हैं, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, राइट, डी वाई डी एक्स का साइन स्कीम है ये। ए को प्लॉट कर दोगे नंबर लाइन पे, ए से बड़ा कोई वैल्यू लेके एफ डैश एक्स में डालोगे तो एफ डैश एक्स सपोज पॉजिटिव आया और ए से छोटा लेके भी पॉजिटिव ही आया, लेकिन ए पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, देन f is strictly increasing at x equals to a, ठीक है। नेक्स्ट केस, a पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है और a के बाद या पहले डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो f is strictly decreasing at x equals to a। और अगर साइन में चेंज आ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो f इज नॉन मोनोटॉनिक, यानी कि वो इंक्रीज भी नहीं कर रहा है और डिक्रीज भी नहीं कर रहा है ऑपोजिट साइन आने पे, राइट। जैसे एक एग्जांपल से मैं दिखा देता हूं, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस टू होल क्यूब, राइट। हम लोग को x इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, 2 डाला, 0 आ गया। अब आप नंबर लाइन बनाओगे, 2 को प्लॉट करोगे, 2 से बड़ा वैल्यू लोगे 3, इसमें डालोगे एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश 2 आ रहा है पॉजिटिव, देखो इसमें डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 2 से छोटा भी डालोगे, 2 से बड़ा डाल रहे हो, और 2 से अगर छोटा डाल रहे हो तो भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। तो साइन में चेंज आया नहीं आया, तो इसका मतलब वो नॉन मोनोटॉनिक नहीं है। तो क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? तो प्लस मतलब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, समझे। और दोनों नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ बदल दूँ, स्क्वायर कर दूँ, अब इसका डिफ्रेंसिएशन आया 2 इंटू एक्स माइनस 2 के पावर में 1, एफ डैश 2 अभी भी 0 आ रहा है, अभी भी ये सवाल खुला हुआ है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग 2 को प्लॉट करेंगे, 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे, डालोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, और 2 से छोटा डाल रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। साइन में चेंज आना इंडिकेशन द फंक्शन इज नॉन मोनोटॉनिक, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। अब कोई भी फंक्शन अगर हमें दे दे और हमें बोले चेक करो वो कैलकुलस मेथड से कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे चेक करेंगे? तो सपोज करो डेरिव कैलकुलस मेथड अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो मान लो क्वेश्चन दिया है x टू द पावर 5 माइनस प्लस 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 11, ये फंक्शन है, और बोलेगा बताओ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दिस,
डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, hence f is strictly increasing, f is strictly increasing, ठीक है। फिर देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज 5x माइनस 2 cos x प्लस 3। बोलेगा बताओ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज़, 5 माइनस प्लस 2 साइन, यहाँ प्लस कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -2 sin x प्लस 0। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम लोग सबको पता है कि sin x का रेंज होता है -1 to 1, 2 sin x का रेंज हो जाएगा -2 से 2। सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, माइनस से देखो सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया, सब में 5 ऐड कर दिया, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। तो एफ डैश एक्स का रेंज क्या दिख रहा है आपको, ये किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी कि तुम कंक्लूड कर सकते हो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। ओरली भी देख सकते हो, मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि इसका वैल्यू कभी भी 5 को एक्सीड नहीं करेगा, लेकिन मेथड से दिखा दिया आपको एक बार ऐसे ही, राइट। इसके बाद कोई भी फंक्शन दे दिया, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये आपसे पूछा, आपने जवाब दे दिया, राइट। अब सवाल ये आएगा, बोलेगा फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, टोनिसिटी, ठीक है, मतलब कहाँ वो इंक्रीज कर रहा है, कहाँ वो डिक्रीज कर रहा है, आपको ये बताना पड़ेगा, राइट। तो कैसे बताएंगे, तो एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, राइट। लेट मी पिक अ क्वेश्चन। 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। बोलेगा बताओ कहाँ ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो वर्किंग रूल क्या है, ठीक है, आपको बताना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, आपको बताना है। तो सबसे पहले आप डोमेन को नोट करना, स्टेप 1 नोट द डोमेन, डोमेन नोट करना बहुत ज़रूरी है, नोट द डोमेन, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। डोमेन क्या है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, कर दिया, 6 कॉमन ले लेना, और पहले सिंपली देख सकते हो क्या ये पॉजिटिव ऑलवेज है या नहीं है, वो आप अपने से, अगर पॉजिटिव है तो दिख जाएगा, नेगेटिव है दिख जाएगा। मैं क्या करूँगा, इसको फैक्टराइज करूँगा, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है वो चेक कर लेना, x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को नोट करना। क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है, राइट। तो यहाँ तो अनडिफाइंड वाला केस ही नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है, 1 और 2। अब आप क्या करोगे थर्ड स्टेप में, साइन स्कीम, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, फॉर एफ डैश एक्स यूज करेंगे हम लोग, नंबर लाइन बनाएंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया है वो प्लॉट कर देना। हाँ ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट डोमेन को बिलोंग करना चाहिए, इस केस में डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है इसलिए मैंने सीधा ले लिया, राइट। अब साइन, अब कोई भी 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे 3 और डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, नॉर्मल साइन स्कीम, 3 लेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है
और ऑल्टरनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स का पावर ऑड है, ऑल्टरनेट कर दिया। अब कहाँ पे इंक्रीजिंग है, इस 3 इंटरवल में कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है? तो ये किसका साइन है? ये साइन है एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है? यहाँ और यहाँ, तो वहाँ इंक्रीजिंग हो गया, और डिक्रीजिंग इसके बीच में। तो क्या लिखोगे? एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल? माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 2 टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में। इसमें देखो मैंने 1 को इंक्लूड किया है, राइट? 1 को इंक्लूड कब करेंगे? जब 1 पे वो इंक्रीजिंग होगा। 1 पे इंक्रीजिंग कब होगा, राइट? तो मतलब इसका वैल्यू जो 1 पे आ रहा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 माइनस, है ना? तब वो इंक्रीजिंग होगा। तो वो दिख रहा है, होगा ही, कि कंटिन्यूअस कर्व है, राइट? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल मिल गया। एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 to 2। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि मैंने क्लोज इंटरवल क्यों लिया है, वो ध्यान से देखना। 1 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जब डेरिवेटिव 0 आ जाए तो वहाँ पे इंक्रीजिंग है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो चूंकि हमें ये एंड पॉइंट है, इसके आगे तो जाना नहीं है, तो 1 से पहले डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्रीजिंग है वो, ठीक है? इंक्रीजिंग है। और 2 के बाद भी देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए वहाँ भी इंक्रीजिंग है, इसलिए उसको इंक्लूड मैंने किया। और इस केस में 1 के बाद नेगेटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग, 2 के पहले भी नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग, तो उसको इंक्लूड किया हमने, राइट? तो इस तरह से हम लोग इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी चेक निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब आपको जब भी बोलेगा इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालो, अब देखो मोनोटोनिसिटी निकालने का डेरिवेटिव ये मेथड है। अब क्वेश्चन तुमसे अगर नहीं बनता है तो उसका रीज़न ये नहीं होगा कि आपको आता नहीं है। हाँ, अब ये एक्सप्रेशन मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा तो आपको दिक्कत आएगी, राइट? उसका मैं एग्जाम्पल एक आपको शो करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वेश्चंस को जितना भी टफ किया जा सकता है, वी कैन डू इट। वो आपको दिया रहेगा तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है उसके अकॉर्डिंगली। 2x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस लॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बोलेगा टेस्ट मोनोटोनिसिटी, तो आपको बताना है कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट? तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? सिंपली आपको रूल्स पता है, पहले डोमेन नोट कर लो। डोमेन है और रियल वैल्यूज़, इसका डोमेन और रियल वैल्यूज़, इसका भी डोमेन और रियल वैल्यूज़, इसका भी डोमेन और रियल वैल्यूज़, क्योंकि ये हमेशा इससे बड़ा ही आएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? 0 से इन्फिनिटी, राइट? ये डोमेन है आपका, सॉरी और रियल वैल्यूज, सॉरी
ऑल रियल वैल्यूज। अब हमें इसका मोनोटोनिसिटी चेक करना है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, करो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, इसका -1/1 + x², इसका डिफ्रेंशिएशन लॉन का 1 इंटू ब्रैकेट खोलेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x/2 √1 + x² -x का 1, 2 काट दिया आपने, ठीक है, 1 + x² प्लस सिंप्लीफाई करते हैं इस पार्ट को पहले, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन इज द मेजर रोल। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ज़्यादा नहीं, इससे फार बेटर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब आया, अब ये देखो आप, ये कट रहा है, ये कट जाएगा माइनस साइन के साथ, राइट। तो क्या बचा, 2 -1/1 + x² -1/√1 + x²। अब आपको बताना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, 2 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 + 1, राइट। एलसीएम ले लो इसका, इन दोनों का एलसीएम ले लो साथ में, इन दोनों का यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 + x² - 1 x²/1 + x², और ये आ जाएगा √1 + x² -1/√1 + x²। क्लियरली सबको दिख रहा होगा कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और ये इससे बड़ा या बराबर होगा, राइट। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इक्वल्स टू 0 हो रहा है x इक्वल्स टू 0 पे, ये भी ध्यान रखना, एट डिस्क्रीट पॉइंट, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्रूव कर दिया आपने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन देखो, तो एक से क्वेश्चन होंगे इस पे, लेकिन वन शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, f(x) = y = 4x 2x² माइनस ln x, ठीक है। बोलेगा इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालो, कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें मिस्टेक होने का जोन है, मैंने आपको पहले बताया डोमेन नोट करना चाहिए। तो डोमेन क्या है इस केस में, 0 to ∞, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए लॉग डिफाइंड नहीं होता है, तो डोमेन इज 0 to ∞। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, अब डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 4x - 1/x, आप एलसीएम लोगे, दिस इज 2x - 1, 2x + 1 अपॉन x, राइट। अब आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं हम लोग, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये टर्म तो पॉजिटिव है ही, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो बचा कौन, खाली 2x - 1। तो 2x - 1 से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, हाफ, राइट। 0 से नीचे हमें जाना नहीं है, तो हाफ से बड़ा लोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन half to infinity and strictly decreasing in 0 to half, ठीक है, strictly decreasing। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आप इस डोमेन पे ध्यान नहीं देते गाइस, तो क्या होने वाला था मैं बताता हूँ। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते तो आप यहाँ पे क्या करते, आप सोचते भी नहीं, आप सीधा आपने एलसीएम लेते, आप क्रिटिकल पॉइंट्स डालते, -½ 0 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है और हाफ पे, फिर आप साइन चेक करते, हाफ से बड़ा लेंगे आप साइन चेक करते, हाफ से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, 0 से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, राइट। तो आप कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो आप बोल देते -½ से 0 और हाफ से इन्फिनिटी, लेकिन वो गलत होता, राइट।
तो डोमेन को नोट करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर यू ऑल टू नोट द डोमेन बिफोर प्रोसीडिंग, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक से एक क्वेश्चंस इस पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे आपको मिलेंगे, राइट. अच्छा, कुछ डिसकंटिन्यूअस वाले केसेस को भी देखते हैं. x 0 से 1 तक, राइट. और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 2. ठीक है. अब आपको बताना है कि x इक्वल्स टू 0, 1 और 2 पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. 3 पॉइंट पे आपको चेक करना है, राइट. तो आप डायग्राम से चेक कर सकते हो. y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन बनाया आपने 0 से 1 में, राइट. ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड. फिर 1 से 2 के बीच में आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया, दिख रहा है आपको. अब बताओ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. ओवरऑल जज करें तो दिस इज इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या सिंपली इंक्रीजिंग बोल सकते हो, या नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हो, राइट. नॉन डिक्रीजिंग. अब रहा सवाल कमेंट करने का 1, 0, 1 और 2 पे. तो क्या ये 0 एंड पॉइंट है ना? क्या 0 पे ये इंक्रीजिंग है? यस, क्योंकि 0 के बाद ये बढ़ते जा रहा है, तो 0 पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट. 1 पे बताओ, तो 1 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? बिल्कुल नो. क्यों? क्योंकि 1 के बाद वैल्यू सेम रह रहा है, बढ़ नहीं रहा है, राइट. और 1 के पहले कम आ रहा है, ठीक है, लेकिन 1 के बाद अगर बड़ा आता तब इस पर हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते. तो 1 पे नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है. 2 पे कमेंट करो, तो 2 पे भी नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. हाँ, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते क्योंकि वैल्यू सेम रह रहा है, राइट. तो ये डिसकंटिन्यूअस केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब इसको करने के लिए इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालने के लिए आपको बहुत चीज़ें आनी चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री, साइंस स्कीम का नॉलेज होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए आपको. इफ़ यू डोंट रिमेंबर डिफ्रेंसिएशन तो यू विल गेट कॉट अप. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज सच इज़ नॉट अ प्रॉब्लमैटिक चैप्टर, बट द थिंग इज़ इसमें आपको क्या आना चाहिए? ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडियाज़, राइट. तो one should know all those stuffs. So with this part we come to the end of the second part of increasing decreasing, right. इसके बाद we have the third part which we will be doing in next video.